Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel, Lagrange Institute for Mathematics. In this channel, I will discuss mathematics problems and concepts from basic to higher level. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon. Hi everyone, I will discuss relations and Cartesian product of two sets in this section. ठीक है, देखते हैं. What is the Cartesian product of two sets? Let's A and B be two non-empty sets. Then non-empty set, the set of all ordered pair. The set of all ordered pair A comma B such that A belong to A and B belong to B is called Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A with set B. Clear? This is called the Cartesian product of two sets with set A and set B. Clear? It can be right A cross B is equal to A comma B such that A belong to A and B belong to set B. ठीक है, ये जो पहला एलिमेंट होता है इस ऑर्डर पेयर का ये सेट A से होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है ये सेट B से बिलोंग करता है. ठीक, thus इस प्रकार हम B क्रॉस A अगर डिनोट करना चाहें तो हम डिनोट कर सकते हैं B कॉमा A से. B क्रॉस A कैसे डिनोट करेंगे? B कॉमा A से such that B belong to set B and A belong to set A. क्लियर? ठीक है. एंड A क्रॉस B इज इक्वल टू फाई. दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाई नहीं प्राप्त कर सकते. ठीक है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें फाई मिल रहा है तो ये दोनों ऐसे होंगे, इन दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो एम्प्टी सेट होगा. मतलब A क्रॉस B इज इक्वल टू फाई इफ A is equal to phi or B is equal to phi. This is called the Cartesian product of any two set. For example, let A be a set such that 1, 2, 3 and B is equal to A, B. Two sets, then their Cartesian product A cross B is equal to ये हो जाएगा हमारा कितना 1 comma A 1 comma B and 2 comma A 2 comma B 3 comma A and 3 comma B. Clear? This is called the Cartesian product of two sets. मतलब Cartesian product of set A with set B. If we want to find Cartesian product of set B with set A, then we can write B cross A is equal to A comma 1 A comma 2 B comma 1 B comma 2 and C comma 1 and C comma 2. This is the Cartesian product of set B with set A. Clearly from both we can see A cross B does not equal to B cross A. A cross B कभी भी B cross A के इक्वल नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि A क्रॉस B में पहला कंपोनेंट तो A से होता है. A क्रॉस B में पहला कंपोनेंट A से होता है सेट A से, और लेकिन B क्रॉस A में जो पहला कंपोनेंट होता है वो सेट B से लिया जाता है. तो इसलिए ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रिलेशन या रिलेशन ऑफ एनी रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट. क्लियर? relation between any two
सेट। किन्हीं दो सेट के बीच में रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट A and B be two non-empty set. Let A and B be two non-empty set. Then let R be a relation, या ऐसे कह सकते हैं कि let A B be two non-empty set, then let R be a relation from set A to set B. R जो है एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेट A से सेट B पे, सच दैट ये इस तरीके से होगा, एक रिलेशन R है, then R is the subset of A cross B. तो हमारा जो R रिलेशन होगा वो A क्रॉस B का क्या होगा, सबसेट होगा। मीन्स वो कह रहा है कि let A and B be two non-empty sets, then let R be a relation from set A to set B. एक रिलेशन हमने डिफाइन किया सेट A से सेट B पे, then R is the subset of A cross B. That is, if R is a relation, if R is a relation defined from set A to set B, then R must be subset of A cross B. तो R जो रिलेशन होगा उसमें जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो A क्रॉस B के क्या होंगे, सबसेट होंगे। क्लियर, दिस इज द रिलेशन। ठीक, अब इसको लिखते कहते हैं इट कैन बी रिटन एज ARB, which is read as A related to B by the relation R. Clear? But if A not related to B, then we say A is not related to B by the relation R. तो हम कहते हैं कि ये जो A है वो B से रिलेटेड नहीं है, किसके थ्रू, रिलेशन R के थ्रू B से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रिलेशन लिखने का और पढ़ने का तरीका। ठीक है, रिलेशन क्या होता है। ठीक, रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में ही डिफाइन होता है। ठीक है, जो भी रिलेशन हम डिफाइन करते हैं दो सेट के बीच में ही करते हैं। रिलेशन कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारे आपके घर के बीच में भी बहुत सारे रिलेशंस हैं, वैसे हमारे नंबर्स के बीच में भी रिलेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे किन्हीं दो प्राइम के नंबर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, या दो ऑड नंबर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, दो इवन नंबर के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डिफरेंट टाइप के रिलेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम आगे देखते हैं हाउ कैन फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, लेट R be a relation, defined from set A to set B. Let R be a relation defined from set A to set B, then such that
R is equal to A comma B belong to, then R is equal to A comma B such that A belong to A and B belong to B, ये रिलेशन डिफाइन है. Then domain of this set, this relation can be defined as the first component of this relation. ठीक. Then domain of relation R is the first component or coordinates of each ordered pair belong to R. Then domain of relation R is the first component or coordinates of each pair belong to relation R. That is domain of relation R. रिलेशन R का जो डोमेन होगा वो कितना होगा? रिलेशन R का जो डोमेन होगा द फर्स्ट कंपोनेंट, हमने यही लिखा है फर्स्ट कंपोनेंट मतलब A such that A comma B belong to relation R. रिलेशन R से वो सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट को हम चूज करेंगे जो रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हो. क्लियर? अब हम बात करते हैं डोमेन के साथ साथ रेंज की. व्हाट इज द रेंज ऑफ ए रिलेशन R? ठीक है, देखिए व्हाट इज द रेंज ऑफ रिलेशन R. रिलेशन R की रेंज क्या होगी? लेट R be a relation defined from set A to set B. Let R be a relation defined from set A to set B such that R is equal to A comma B from A belong to A and B belong to B. ठीक. Then range of relation R is the second component or second components or coordinates of each ordered pair belong to relation R. That is हम ये कह सकते हैं that is range of relation R is equal to, ये जो रिलेशन R है उसकी रेंज क्या हो जाएगी? सेकेंड कंपोनेंट such that A comma B belong to relation R. देखिए रिलेशन R के सेकेंड कंपोनेंट को ही हम क्या करें? रेंज. अब एक चीज तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि देखिए ये जो हमारा रिलेशन R होगा इसकी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ रिलेशन R मस्ट बी द सबसेट ऑफ सेट B. किसके? सेट B की. देखिए सेट B का क्या होगा? सबसेट होगा. क्या होगा? सबसेट होगा. और जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ सेट A. ठीक है, तो ये हमारे दो कंक्लूजन निकल करके आते हैं. ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं कैसे हम फाइंड करते हैं रिलेशन के रेंज एंड डोमेन. ठीक है, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं लेट R be a relation defined from set A to set A is equal to 1 3 5 7 to set
set B is equal to 2 4 6 8, ठीक, such that R is equal to 1, 2 and 1, 2, 3, 4, 7, 8. Okay, then domain of relation R is equal to, relation R की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंपोनेंट 1, 3 and 7, 1, 3 and 7 एंड, और ये देखिए जो 1, 3, 7 है वो A का क्या है, सबसेट है, इज द सबसेट ऑफ A। हमने पहले ही कहा था वो सेट A का क्या होता है, सबसेट होता है। एंड रेंज ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 4, 8 and 2, तो 2, 4 and 8 इज द सबसेट ऑफ B। देखिए सेट B का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिलेशन की रेंज एंड डोमेन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम आते हैं किस पर, व्हाट इज द रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, let A be a non-empty set, then the relation R defined from set A to itself। रिलेशन R कहां से कहां डिफाइन होगा, सेट A से खुद पे वो डिफाइन होगा। देखो let A be a non-empty set, then the relation R defined from set A to set, then a relation defined from set A to itself, that is कहां से कहां डिफाइन हुआ, A से itself, that is relation, that is R is the subset of A cross A, ठीक है, is defined from A cross A, is defined as मतलब ये जो हमारा रिलेशन होगा, the relation R defined from set A to itself, that is R is the subset of A cross A, is called relation on a set, ठीक है। और वो सेट कौन सा है, हमारा A है, ठीक है। जब कोई रिलेशन किसी सेट पर खुद से खुद पे डिफाइन किया जाता है तो वो रिलेशन ऑन अ सेट कहलाता है। मतलब डोमेन भी हमारा A हो और कोडोमेन भी हमारा A ही हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा रिलेशन कहलाता है वो रिलेशन कहलाता है रिलेशन ऑन अ सेट। किसी पर्टिकुलर सेट पर ही वो रिलेशन डिफाइन किया गया हो, दो अलग अलग सेट नहीं लिए गए हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। क्या पढ़ते हैं हम लोग, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, let R be a relation defined from set A to set B, where A and B are non-empty set। दोनों कैसे हैं, A और B कैसे हैं, दोनों नॉन इम्पटी हैं। कैसे हैं, नॉन इम्पटी सेट हैं, ठीक है। तो कह रहा है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, let R be a relation defined from set A to set B, defined from set A to set B let R be a relation defined from set A to set B such that R is equal to A comma B
A belong to A and B belong to B, then inverse of relation R is denoted by R inverse and defined from set B to set A. Clear? That is R inverse is equal to, R इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, B, A हो जाएगा, जहां पर B belong to B and A belong to A. Clear? B belong to B and A belong to A. Clear? That is, अब यहां से क्या इंप्लाई होता है, देखिए एक तो क्लियरली दिख रहा है कि डोमेन ऑफ रिलेशन आर की जो डोमेन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रिलेशन आर की जो डोमेन है देखिए वो आर इनवर्स की रेंज के इक्वल हो जाएगी, मतलब रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। क्लियर? मतलब ये हो गया कि जो R की डोमेन होगी वो R इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, और जो R की रेंज होगी वो R इनवर्स की डोमेन बन जाती है। क्लियर? तो ये तो हमारे जो मेन थे इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, अब आगे के हम डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? चलिए यही देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। Let R be a relation defined from set A to set B. Let R be a relation defined from set A to set B, then such that R is equal to phi. R is equal to phi is the subset of A cross B. Then the relation R is defined as empty relation or void relation. Okay, next. But if relation R is equal to A cross B, मतलब रिलेशन R में A cross B के सारे ऑर्डर पेयर कंटेन हो जाते हैं, then the relation R is defined as universal relation। अगर कोई रिलेशन हमें ऐसा मिलता है, ठीक है, A क्रॉस B, कोई एक ऐसा रिलेशन डिफाइन है जो सेट A से सेट B पे डिफाइन है, तो रिलेशन R जो मिल रहा है उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है, मतलब वो एम्प्टी है, तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाता है, एम्प्टी रिलेशन हो जाता है, या उसी को नल रिलेशन कहते हैं या उसी को वॉइड रिलेशन कहते हैं। ठीक, लेकिन हमें अगर ऐसा रिलेशन मिल जाता है जो सेट A से सेट B पे डिफाइन है और A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल उसमें सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर sometime we can say both empty relation, sometimes we can say both empty relation and universal relation as ट्रिवियल रिलेशन। क्या कहलाता है,
ट्रिवियल रिलेशन कहलाता है। कंबाइंड रूप से अगर हम देखें तो कभी कभी हम यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को क्या नाम दे देते हैं, ट्रिवियल रिलेशन नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ट्रिवियल रिलेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल रिलेशंस। ठीक, अब नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिलेशन। क्लियर, देखिए